सियासत टीवी के प्रोग्राम स्प्रिंट फॉर स्पिरिट में आप सबका वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद मुनीर। दोस्तों, इस बार हैं क्या खास, देखें आप। First year students developed a rover with a split wheel configuration to enhance obstacle climbing. किंग खान को लोकार्नो अवार्ड से नवाजा गया, जो ऑस्कर से पुराना है। ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती है, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी, देश की सेवा, तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करूँ। सुबह शाम 24 घंटे हम बस फ़ोन पे लगे रहे। रीडिंग कल्चर, बुक्स पढ़ने का कल्चर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। दोस्तों, हमारा वतन आसमान की बुलंदियों तक पहुंच गया है और हर शोबे में नुमायाँ कामयाबी हासिल करने लगा है। इस कामयाबी में हर कोई अपने तौर पर कुछ नया कर रहा है और आज हम भी कुछ ऐसा ही कर जाने वालों के बारे में जानते हैं। आइए देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और कुछ नया करने की कोशिश भी करते हैं। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता? एक पत्थर तो ज़रा तबीयत से उछालो यारो। हिंदुस्तान अपने खलाई सफ़र की तरफ पूरी तरह कामयाबी के साथ रवां दवा है। इसी के पेश नज़र हिंदुस्तान ने अपना पहला कौमी खलाई दिन 23 अगस्त को इंडियाज़ स्पेस सागा के तौर पर मनाया है। इस इब्तदाई कौमी खलाई दिन पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने इसरो के फातिहीन को इनामात से नवाजा। आप भी देखें वो कौन कौन है। Ladies and gentlemen, we begin with the winners of Robotics Challenge. Third prize goes to Team Samarth. मंच पर पधार रहे हैं टीम के सदस्य कार्तिक पांडे। First year students developed a rover with a split wheel configuration to enhance obstacle climbing, showcasing exceptional creativity. Now invite Muskan, the second team member, to receive the award. Second prize goes to team Ad Astra. I invite on dais Dhanush Kumar V. This team designed a rover that accomplished sample picking and dropping without the need of a robotic arm. Truly remarkable. And now Prabhakaran GS from the team receiving the award. And the winner of the first prize of the Robotics Challenge is Team Titans. I invite on dais Sanjot Kavle, and the team created a rover with safe sample handling and precise autonomous picking and dropping. Outstanding innovation skills indeed. And now Dipanshu Pise from the team is on the dais to receive the award. And now we have the winners of Bharatiya Antriksh Hackathon. Third prize goes to Team Khagola. I invite Biki Ram on the dais. This team developed an application which gave a new insight into the timing capabilities of our first multi-wavelength satellite, AstroSat. And now I invite Shyam Prakash VP to receive the award, the second member of the team Khagola. Second prize goes to Team Lucene. First I invite Sambit Malik. The team developed Shakti, a shadow-based hybrid algorithm for knowledge of topological irregularities to detect craters and boulders using OHRC images. And now Snigdha Paul receiving the award. And the winners of first prize of Bharatiya Antriksh Hackathon are Team 10011. I invite Navdeep Singh Sidhu on the dais. This team developed Lunar, an application developed to predict safe navigation routes with 10 points of interest for rovers on the moon based on the given coordinates of the landing site. Riya Sachdeva is now receiving the award. आपका बहुत-बहुत आभार माननीय राष्ट्रपति जी पुरस्कार प्रदान करने के लिए। Ladies and gentlemen, ISRO along with Indian Space Fraternity is gearing up to realize the vision led by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. निरंतर आकांक्षी लक्ष्यों की ओर अग्रसर है इसरो। फिर चाहे बात 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की हो या फिर 2040 तक किसी भारतीय की मून लैंडिंग की।
नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। इस गाने के बोल तब मुमकिन हुए जब आदित्य तिवारी ने इंदौर के एक चौराहे पर गाड़ी चलाने वालों को अपने गानों और मशवरों से आगाह करते हुए दिखाई दिए हैं। जी हां, 10 साल का ये नन्हा बच्चा सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को सरेराह ट्रैफिक रूल समझा रहा है। अक्सर लोग गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक के कवानीन को नज़रअंदाज कर देते हैं। ये वो जगह है जहाँ हादसात की वजह बनती है। ये नन्हा मुहाफिज अपने तौर पर आवाम में शऊर बेदार कर रहा है। आइए जानते हैं नाज़िमा बेगम की ज़ुबानी आदित्य तिवारी की कहानी। इंदौर की सड़कों पर निकला ये 10 साला बच्चा ट्रैफिक रूल समझाने के लिए। जी हाँ, 10 साल का ये नन्हा बच्चा सड़क पर गाड़ी चलाने वालों को सरेराह ट्रैफिक कवानीन समझा रहा है और इसका साथ भी ट्रैफिक पुलिस खूब दे रही है। तफसीलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के इंदौर में गाड़ियों की तादाद खूब बढ़ रही है। अक्सर लोग गाड़ी चलाते हुए ट्रैफिक कानून को नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो जगह है जहां हादसात की वजह बनती है, फिर भी लोग नहीं समझते। ऐसे में नन्हा आदित्य तिवारी अनोखा काम कर रहा है। वो अपने लिखे हुए गाने गाकर लोगों में ट्रैफिक कानून के बारे में आगाही और शऊर फैलाने का काम करता है। दरअसल आदित्य अपना पैगाम फैलाने के लिए म्यूजिक का भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाने के जरिए लोगों की तवज्जो बआसानी हासिल की जा सकती है और शऊर बेदारी फैलाने का एक आसान तरीका भी है। आदित्य तिवारी ने कहा, मैं पिछले 3 सालों से ट्रैफिक का इंतजाम संभाल रहा हूँ। ये सुनने ले जमाना गाड़ी मोबाइल चलाना ट्रैफिक रूल जीवन का मंत्र तो समझ लो मेरे यार। मेरा फ्रेंड निवेदन है कि आप हेलमेट पहना करिए। ठीक है, ये सुनने ले जमाना गाड़ी मोबाइल चलाना लाल बत्ती पर बढ़ जाना। मैं ट्रैफिक 3 साल से संभाल रहा हूँ। मेरी दीदी ना एक मिशन चलाती थी, मिशन नो स्मोकिंग, तो मेरा वो भी देश सेवा करती थी, देश की सेवा। तो मेरा भी मन हुआ कि देश की सेवा करनी है मुझे, तो मैं आ गया। अपनी बहन को नो स्मोकिंग मुहिम चलाते देखकर मेरे जहन में भी मुल्क की खिदमत का ख्याल आ गया और फिर मैं सड़कों पर उतर पड़ा और अपनी आवाज़ में गाने गा गा कर ट्रैफिक कानून के बारे में लोगों में मालूमात फराहम करता हूँ। आदित्य ने बताया, जिस तरह इंदौर सफाई में मुल्क भर में पहले नंबर पर है, इसी तरह मैं चाहता हूँ कि इंदौर ट्रैफिक कानून की पैरवी में भी पहले नंबर पर आ जाए। क्योंकि सर जैसे हमने इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे मैं चाहता हूँ कि अपना इंदौर ना ट्रैफिक में भी नंबर 1 रहे। मैं बड़े होके एक ऐसा सोल्जर बनना चाहता हूँ कि लोग मेरे जैसा बनना है। आदित्य तिवारी की वालिदा संगीता तिवारी ने बताया कि आदित्य काम ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो लोगों की जान बचा रहे हैं और साथ ही साथ शहर के दुश्मनों और शहर में बढ़ती आलूदगी और हादसात से भी लड़ रहे हैं। वो मजीद कहती हैं कि आदित्य एक सिपाही के तौर पर मुल्क के लिए अपना मकसद रखता है। उसे गाने गाना पसंद है। वो फौजियों जैसा लिबास पहनता है और गाने गा गा कर ट्रैफिक कानून के बारे में लोगों में शऊर पैदा करता है। एक्चुअली में डर मुझे इसलिए नहीं लगा इसको ऐसा करने देने में, क्योंकि वो उसकी इच्छा है कि है ना, वो एक सैनिक की जैसे देश की रक्षा करे। उसने मुझे खुद मतलब ऐसे आप समझ लीजिए 3 साल पहले उसने मुझसे ये कहा था कि मम्मी मुझे है ना बॉर्डर पे लड़ने जाना है, जैसे सैनिक लोग है ना सोल्जर लोग लड़ते, मुझे भी जाके लड़ना है। तो मैंने कहा बेटा अभी आपको उसके लिए टाइम लगेगा। तो बोले नहीं मुझे तो दुश्मनों से फाइट करना है। मैंने कहा ऐसा करो आप अपने शहर के दुश्मनों से फाइट करो पहले। तो उसने पूछा कौन से दुश्मन है मम्मी बताओ। तो मैंने कहा पॉल्यूशन है और एक्सीडेंट है। तो बोले ठीक है मुझे उनसे फाइट करना है, आप मुझे सोल्जर की ड्रेस दिलवाओ। फिर सोल्जर की ड्रेस दिलवाई। फिर उसको गाना गाना बहुत पसंद है, तो उसने कहा कि मैं ना लोगों को है ना इस ट्रैफिक के लिए अवेयर करूँगा, इंदौर को ट्रैफिक में भी अवेयरनेस में भी नंबर 1 लाऊँगा। फिर आ गया वो बिल्कुल चौराहे पर और उसके सपोर्ट के लिए और साथ के लिए मैं, वो छोटा है तो फिर मैं उसके साथ पूरे समय रहती हूँ। 1.5-2 घंटे तक वो आराम से ट्रैफिक को लोगों को समझाता है, लोगों को अवेयर कराता है, गाने के थ्रू, बोलकर, हाथ जोड़कर, निवेदन करके, हर तरह से कोशिश करता है। और उसका हाँ जी डेली संडे को छोड़कर, मतलब मंडे से लेकर सैटरडे तक। उन्होंने कहा, मेरा बेटा 7 साल की उम्र से ही ये काम कर रहा है।
और वो ये काम पीर से हफ्ते तक ज़रूर करता है और मैं भी उसे बहुत सपोर्ट करती हूँ और जब वो अपना काम करता है तो मैं भी उसके साथ रहती हूँ। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन विंग के समन सिंह ने कहा, आदित्य पिछले 3 सालों से ट्रैफिक कानून के बारे में बेदारी फैला रहे हैं और इस नन्हे सिपाही के ताउन से हम बेदारी फैलाने में काफ़ी कामयाबी भी हासिल कर रहे हैं। मैं ट्रैफिक को संभालते हुए आदित्य का भी ख्याल रखता हूँ और इसे हिफाजती उसूलों और एहतियाती तदाबीर के बारे में भी सिखाता हूँ। मैंने आदित्य को पिछले 3 साल से देख रहा हूँ और इनमें जो बचपन में जो इनके घर से जो शिक्षा मिली है, बोलते हैं संस्कारों की शिक्षा के साथ सुरक्षा की जो शिक्षा इनके पेरेंट्स ने दी है, मैं उनके भी जज्बे को सलाम करता हूँ। और ये मैं 3 साल से देख रहा हूँ, इन्होंने अपने जो लोगों को जागरूक करते हैं उसमें हमेशा कुछ ना कुछ नया लेके आए हैं। इतनी कविताएं इतनी मधुर स्वर में ये जब बोलते हैं लोगों को, तो लोगों को भी स्टॉप लाइन के पीछे खड़ा होने पे मजबूर कर देते हैं। लोग प्रॉमिस करते हैं कि बिल्कुल हम हेलमेट पहनेंगे, तो कहीं ना कहीं हद तक जो यातायात जागरूकता का जो हम प्रयास कर रहे थे उसमें आदित्य के आने से 4 चांद लग गए और मैं बहुत खुश हूँ। आपने इसको सिखाया है किस तरह से हैंडल करना है या ये खुद सीखा हुआ? नहीं, ये जो कविताएं हैं ये इनके पेरेंट्स और इनकी स्व प्रेरणा से हैं। बाकी जो ट्रैफिक हैंडल करने का जो तरीका है, क्या क्या सेफ्टियाँ रखनी चाहिए, और वो हम लोग भी इन्हीं के साथ में रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इन्हें सिखाते हैं। इसको जैकेट और स्पेशली आईडी कार्ड भी ट्रैफिक विभाग ने इशू किया। जी, ये हमारे यातायात परिवार का एक हिस्सा बन चुका है और इसे नाम भी दिया है ट्रैफिक सोल्जर ऑफ इंडिया। और जैकेट, आईडी कार्ड, नेम प्लेट, बिशिल, पूरी सेफ्टी के साथ में ये ड्यूटी करते हैं और उस दौरान पुलिस जवान भी होते हैं और खासकर इनकी जो माँ है वो भी साथ में रहती है। वो ट्रैफिक बिरादरी का एक रुकन बन गया है। हमने उसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ इंडिया का नाम दिया है। वो तमाम हिफाजती प्रोटोकॉल के मुताबिक काम करता है, यानी कि जैकेट पहनता है, शिनाख्ती कार्ड, नाम की तख्ती और सीटी भी अपने साथ रखता है। छोटी उम्र में हसास माहौल में हसास बनकर आदित्य तिवारी ने अपनी जिम्मेदारी समझी। काश के सड़क पर हर गाड़ी चलाने वाले अफराद दौरान सफर हेलमेट के साथ तमाम एहतियाती ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें तो खुद भी महफूज और दूसरे भी महफूज सफर कर सकते हैं। इस नन्हे बच्चे को हमारा सलाम। मैं नाजिमा बेगम, स्पेशल स्टोरी, सियासत स्पिन फॉर स्पीड, टाइम अब बदलेगा। दोस्तों, शाहरुख खान के नाम कई बड़े रिकॉर्ड्स हैं और इन्हें आलमी सतह पर बड़े एजाज़ात भी मिले हैं। किंग खान की फ़ैन फॉलोइंग भी ज़बरदस्त है और इनके नाम से ऐसे कई रिकॉर्ड्स हैं जो वो हासिल करने वाले पहले हिंदुस्तानी भी हैं। गुज़िश्ता हफ्ते इन्हें एक बड़ा एजाज़ मिला। शाहरुख खान को 77वीं लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। आइए देखते हैं। किंग खान को लोकार्नो अवार्ड से नवाजा गया, जो ऑस्कर से पुराना है। स्विट्ज़रलैंड में बादशाह की ताकत को जाहिर करता है। शाहरुख खान को स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िद होने वाले 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पार्डो अला कैरियर से नवाजा गया। अवार्ड हासिल करने के बाद किंग खान ने इसके वज़न के बारे में मजाक भी किया, जिसे सुनकर हाज़रीन हंस पड़े। गर्मियों के मौसम में पसीने से शराबूर नज़र आने वाले शाहरुख खान ने लोकार्नो में आने पर खुशी का इजहार करते हुए इसे एक खूबसूरत, सकाफती, फनकाराना और इंतहाई गर्म शहर बताया, जहां एक छोटे से चौक में इतने लोग जमा हुए थे। दोस्तों, दरअसल लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल एक बड़ा बैनुल-अक़वामी फिल्मी मेला है जो हर साल लोकार्नो यानी स्विट्ज़रलैंड में मुनक़िद होता है। ये 1946 में कायम किया गया फेस्टिवल मुख्तलिफ मुसाबक़ती और गैर मुसाबक़ती सेक्शंस में फिल्मों की नुमाइश करता है। बशमुल नैरेटिव डॉक्यूमेंट्री, दस्तावेज़ी फिल्म और मुख्तसर फेस्टिवल का सबसे बड़ा इनाम गोल्डन लेपर्ड है, जिसे बैनुल-अक़वामी मुकाबले में बेहतरीन फिल्म के लिए दिया जाता है। दोस्तों, किताबें किसी भी क़ारी का एक अहम ज़रिया है। इनके मुताले से जहां मालूमात में इजाफ़ा होता है, बल्कि ज़हनी सुकून भी मैसर होता है। नई किताबें मुस्तक़बिल को बयान करती हैं, वहीं पुरानी किताबें तारीख़ से वाकिफ़ भी करवाती हैं
मौजूदा दौर डिजिटल का है, यहाँ मुताले का वसी मैदान मौजूद है। ऐसे में भी किताबें अपनी ख़ास अहमियत रखती हैं। इसी हवाले से कश्मीर में मेगा चिनार बुक फेस्टिवल रखा गया। किताब मेले का मकसद टेक्नोलॉजी के इस डिजिटल दौर में नौजवानों को दोबारा किताबों की तरफ राग़िब करते हुए मुताले का शौक़ बढ़ाना है और उनकी मालूमात में इजाफ़ा करना है। आप भी देखें फेस्टिवल और किताबों से जुड़ी बातें और उनके तजुर्बात। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल बुक ट्रस्ट पूरे देश में पुस्तक और पुस्तक संस्कृति यानी कि रीडिंग कल्चर को प्रमोट करने के लिए पिछले लगभग 67 सालों से काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि श्रीनगर में डल लेक के किनारे इस भूमि पर जो ऋषि मुनियों की, लेखकों की, कवियों की भूमि रही है, हम अपनी युवा पीढ़ी को किताबों से रूबरू कराएं। किताबें एक ऐसा जरिया है जो आपकी सोच को, आपके ख्यालों को, आपकी ज़िंदगी की हसरतों को एक बड़ा विस्तार देती है। कहीं ना कहीं अब बच्चों को यहाँ केवल किताबें ही नहीं, कला, साहित्य और संस्कृति का भी एक संगम अगले 9 दिनों में देखने को मिलेगा। वो अपनी जो भारत की विविधताएं हैं, केवल कश्मीर की नहीं, भारत की विविधताओं को भी यहाँ देख पाएंगे। पूरा प्रयास हमारा यही है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने देश को अलग अलग नज़रिए से देखे, अलग अलग नज़रिए से जाने और किताबों के माध्यम से खुद को सशक्तिकरण की ओर लेके जाएं। एंड बुक शुड बिकम ए मीडियम ऑफ एम्पावरमेंट। बुक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है एटलीस्ट स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि जब हम आजकल अगर हम देखेंगे तो हम सुबह शाम 24 घंटे हम बस फ़ोन पे लगे रहते हैं, लेकिन जो सुकून है जी बुक से मिलता है या जो चीज़ हम खुद पढ़ते हैं उसका एक अलग इम्पोर्टेंस है। तो उस हिसाब से कितना ज़रूरी है इस तरह के फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए। जैसे मैं इस फेस्टिवल में आई हूँ तो मैं खो गई कि मैं चाहती हूँ कि मैं सारी बुक्स ले जाऊँ और मैं सारी बुक्स अपने बच्चों को घर में पढ़ाऊँ, अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊँ। हर एक लाइफ का एक कवर, लाइफ के हिस्से को ये कवर करता है। किताबें जो ज़िंदगी है, किताबों के पढ़ने से लाइफ डेवलपमेंट होता है, आदमी का जहन खुलता है। और ये दूसरी चीज़ें जो है ऑनलाइन, इन सब से वो चीज़ें बैठती नहीं है दिल में, जो है वो ऊपर से गुजर जाती है। किताबों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो बिल्कुल डिमिनिश होता जा रहा है। रीडिंग कल्चर, बुक्स पढ़ने का कल्चर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जो ये इवेंट है इसकी वजह से आज मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर यंग स्टूडेंट्स, कि वो फ़ोन छोड़ के रियल दुनिया देखे, अपनी बुक्स देखे, बुक्स के साथ प्यार करे। नॉवेल्स हो गए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर क्रिटिकल स्किल्स। यू कैन
use your imagination. It is very, very important, sir. फीडबैक के लिए सियासत टीवी फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम, व्हाट्सएप यूज़ करें और आप गूगल प्ले स्टोर से सियासत टीवी ऐप डाउनलोड करें और देखते रहें जब चाहें आप। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए सियासत टीवी मोबाइल ऐप और रखिए टीवी 24 घंटे आपके साथ। दोस्तों, हौसला अफजाई जज्बों को जन्म देती है और एक नई सोच को पहचान देती है। अगर आपके अंदर भी ऐसे ही हौसले और जज्बे हैं जो आपको दूसरों से मुख्तलिफ रखते हैं तो आइए सियासत टीवी के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। अब आपके दोस्त मोहम्मद मुनीर को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात नए नए हौसलों और जज्बों से भरी कहानियों के साथ। देखते रहें सियासत, स्प्रिंट फॉर स्प्रिट, टाइम अब बदलेगा।